Viewers, let's start with the big breaking up coming in right now. RSS chief Mohan Bhagwat has said that the Hindu society should unite by removing differences related to language, caste, province for its own security. Speaking at a gathering, Bhagwat highlighted that internal disputes could jeopardize the community's safety and urged members to prioritize unity. He reiterated that a strong, united front is essential for the future and well-being of Hindu society. Big breaking coming in right now, viewers, where we are seeing that Mohan Bhagwat has called for unity among Hindus, saying that India should transform itself into a more progressive and competent, formidable entity. This is a big update coming in, Republic TV viewers, saying that Hindus should unite, eliminate language, caste and province disputes, and unity is crucial for Hindu society's future. So this is a big statement coming in from RSS chief Mohan Bhagwat, where he's called for Hindu unity. Right, so big update coming in right now, Republic TV viewers. So we will be, of course, joined by our guests. A lot of times we've heard similar statements coming in from RSS chief Mohan Bhagwat, where he has called for a disciplined, strong Hindu society. This is not the first time that Mohan Bhagwat has spoken about Hindu unity. In the past as well, he said that the primary goal of the RSS is to build a disciplined and strong Hindu society. The latest coming in right now is that Mohan Bhagwat has called for a Hindu society to unite by eliminating differences related to language, caste and province for its own security. All right, let's go across to our guest, Vinod Bansal, VHP National Spokesperson joining us. VHP National Spokesperson Vinod Bansal joining us. Thank you for joining us here, Republic TV. Your first reaction. We know that RSS chief has always talked about how Hindus should unite, and this time his appeal for Hindus to unite by eliminating some evils which divide them so they can be stronger together. Definitely, it is the need of the hour. Actually, the thing is that so many persons and organizations are going to divide the society. Some political powers are also doing these things since last 75 years. Whatever done by the Mughals and whatever done by these Christian, the British, and the same is being followed post-independence of the country. It is very unfortunate that some political parties, some political leaders are going to spread hatred among the society, and they are going to divide the Hindu society into a Dalit or Savard and this caste, that caste, and on the basis of caste, creed, religion, region, and so many other things actually. The thing is that whereas the motto, the Sangh motto is that the India is one, the Bharat is one. And we believe that everyone lives in Bharat who have the beliefs in its ancient traditions, its ancient values, its culture, its the great sons and all followers are all Hindus actually. The thing is that we do not discriminate anyone on the basis of their the places of worship, on the basis of their the type of place, type of puja they do actually. The thing is that कि चाहे वो कहीं भी जाता है, बट वो अगर हिंदू मान्यताओं में विश्वास करता है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, महापुरुष, उसके जो मापदंड हैं, उसके जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उनका जो भारत का जो दर्शन है, उन सबको अगर फॉलो करता है और भारत माता को अपना ईष्ट मानता है, या जो भारत को सर्वोपरि मानता है, वो सब लोग हिंदू हैं। डेफिनेटली संघ का विचार और जो भारत का विचार एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और मैं कहूँगा कि संपूर्ण भारत को अब एकाकार होने की आवश्यकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, वो रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो अभी उस राष्ट्रवादी मानसिकता से थोड़ा सा बाहर हैं। कुछ लोग हैं जो कि भारत को भारत न मान करके उसको सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं, एक भूखंड मानते हैं। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। ये भारत माता है हमारी, ये सिर्फ एक भूखंड नहीं है, ये पावन परम पावन है और पूज्य है, ये वसुंधरा है, हम सबका पालन करने वाली है। हमें इसके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। भारत के प्रति, भारत देश के प्रति, भारत माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना प्रत्येक भारतीय का न सिर्फ दायित्व है, बल्कि उनका जिम्मेदारी भी है
और उनको इस बात का पालन करना चाहिए कि भाई हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस डिवाइसिव फोर्सेस and get united the every countryman so that they contribute for the Bharat. And you see, the contribution doesn't comes only from the place of service or place of work. It comes from within the society. It comes from within the person, and it comes from within the family. The family's values should be such that every person, individual should think about the nation. Every individual should think about the society. Every individual should think about dharma. What actually the real values of Bharat are. You see, our lakhs and lakhs of the martyrs have already given their life towards the society, towards this country. And you see, so many the religious scriptures are there, which has contributed a lot towards the upliftment of society, the values of the society, and we believe in the Vasudhaiva Kutumbakam. We believe in the Sarve Bhavantu Sukhna Sarve Santu Niramiya. ये हिंदू मैथोलॉजी है. हमें किसी रिलीजन के आधार पर, किसी पूजा पद्धति के आधार पर, किसी कार्य के आधार पर, या किसी भाषा या जो संप्रदाय के आधार पर, या किसी जो राज्य के आधार पर बंटवारा स्वीकार नहीं है. जो लोग जिस तरह से कहते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो कुछ नहीं है. सब भारतीय हैं, सभी हिंदू हैं. आपको अगर ये थॉट प्रोसेस अगर किसी के अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो भारत के बारे में सोचेगा, भारतीयता के बारे में सोचेगा, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, सर्वभूतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के बारे में सोचेगा, और विश्व कल्याण के बारे में, विश्व बंधुत्व के बारे में सोचेगा. आप देखिए, हिंदू समाज में कभी भी किसी को भेद पूर्वक नहीं देखा जाता. यहाँ तो नारी की भी पूजा होती है और यहाँ पर वृक्ष की भी पूजा होती है. वह यहाँ पर जो है वो सूर्य की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है. यहाँ पर तो चंद्रमा की पूजा होती है, यहाँ पृथ्वी को ही माता माना जाता है. यही तो भारत है. इसी को भारतीयता कहते हैं, इसी को हिंदू संस्कृति कहते हैं, और यही जो है नेचुरल वैल्यूज हैं. और आप देखिए कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति इस बात को कहती है कि हम जितना प्रयोग करें उससे ज्यादा लोगों को दें. आप देखिए कि अगर मैं आधी रोटी खाता हूं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक रोटी कम से कम समाज में बांट के खाऊं. ये जो बांट के खाने वाली बात है वो अलग बात है, और लोगों को बांट के रखना ये दूसरी बात है. शायद कुछ लोगों ने बांट के खाने वाली बात को लोगों को बांटने का एक अस्त्र बना दिया, तो ये ठीक नहीं है. आप देखिए कि जो हमारी जो मान्यता है वो ये है कि अभी जो संसाधन है, चाहे मिनरल्स हैं या नेचुरल अदर रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोटेशन निकालें तो सही, लेकिन उसको अधिक एक्सप्लोटेशन न करें, उपभोग कम करें, उपयोग करें. जितनी आवश्यकता है उतना अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर खर्च करें, बाकी शेष राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए छोड़ दें. यही हमारी मान्यता है. हमारा जो वेद कहते हैं कि एक हाथ से, दो हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो. तो ये जो बांटने की जो कमाया उसको बांट करके और सबको समृद्ध समाज के निर्माण के लिए जो संदेश संघ ने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है. आज संघ जो है, इसीलिए संघ जो है जीवन के हर क्षेत्र में उतर आया है. और आप देखिए कि दुनिया के हर क्षेत्र में उसका काम है. संघ का संसेवक हर जगह जहाँ रहता है वहाँ भारत माता को हृदय में रखता है, और उस देश, उस भूगोल, उस समाज और उस राष्ट्र के लिए भी सतत रूप से उसके विकास के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसकी शांति के लिए कामना करता है और काम करता है. इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भाई हम जो है चाहे भारतीय हैं. जी, आवाज आ रही है क्या? Yes, and also Vinod Bansal, VHP national spokesperson, is with us. I want to ask you one more question before we let you go. We know that the RSS is finishing 100 years, celebrating 100 years next year in 2025, and Mohan Bhagwat has made this statement about Hindu unity, and they also have a big plan. They want to send volunteers to urban areas, to rural areas. They want more volunteers. They want to work on this, on Hindu unity at a grassroots level. If you could take our viewers through why this is important. You see, this is the difference between the Sangha and the other organization. How do they celebrate their century? The thing is that एक बार मैं शाखा में बैठा था और हमारे को क्षेत्रीय प्रचारक बोले कि भी अभी आप बताइए कि अभी 5 साल संघ को शताब्दी वर्ष पूरे होने में क्या करना चाहिए. तो लोगों ने कहा कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, खूब जश्न मनाना चाहिए, को पटाखे फोड़ने चाहिए. तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मुझे लगता है कि 100 शताब्दी वर्ष आने से पहले संघ को खत्म हो जाना चाहिए. तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस बात को क्यों कह रहे हैं वो लोग. उन्होंने इस बात को ये कहा बड़ा एलेबोरेट करते हुए, क्या भाई संघ की स्थापना समग्र समाज के निर्माण की हुई थी.
हम चाहते हैं कि जो संघ सोचता है वो समाज सोचे, जो समाज सोचता है वो संघ सोचे, यानी संघ समाज में, समाज संघ में हो जाए। तो हमें आवश्यकता किस बात की? हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी चलाना है, हमें कोई नाम थोड़ी कमाना है, हमें आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि संघ तभी तक है, पूजनीय अपने डॉक्टर साहब ने कहा था, जो संघ के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि संघ की आवश्यकता तभी तक है जब तक कि समाज संघ में, संघ समाज में ना हो जाए। तो वो उस काम को लेकर के हमारा अचीवमेंट उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। वास्तव में संघ का स्वयंसेवक दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण, दया के लिए समर्पण और प्रत्येक जन कल्याण के लिए समर्पित भाव से व्यक्ति निर्माण हो, यही चाहता है। राष्ट्र के लिए तत्पर लोगों की एक फौज तैयार हो, यही संघ चाहता है। तो संघ ये नहीं चाहता कभी 100 हमारा शताब्दी वर्ष है तो हम सेलिब्रेट करेंगे और हम जो है ना वो जश्न मनाएंगे, नहीं। संघ इज नॉट गोइंग टू डू दैट। संघ कहता है कि हमें शताब्दी वर्ष में अपने सेवा कार्यों को विस्तार करना है। संघ कहता है कि शताब्दी वर्ष में हम वंचितों को और जो समाज में जिनको हम अपलिफ्ट नहीं कर पाए उनको ऊपर लेके जाएंगे। संघ कहता है शताब्दी वर्ष में हम वो काम करेंगे जो कि हमारे अधूरे सपने थे पूजनीय डॉक्टर जी अपने सरसंघ चालक जी के, पूज्य डॉक्टर हेड के बाद ने जो सपना देखा था कि हमें समृद्ध समाज का निर्माण करना है, समृद्ध समाज का निर्माण करना है। और देखिए संघ की प्रार्थना का एक अंतिम वाक्य भारत माता की जय, और उससे पहले एक शब्द आता है परम वै भवन्ने त्वमे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्ता सुसाते वर्षम, यानी हे भारत माता, तेरे को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए मेरा चाहे पूरा शरीर चला जाए, मैं पूरा समर्पित हो जाऊं तो भी मैं तेरे को परम वैभव तक पहुंचाऊंगा। ये संघ की सोच है। बेसिकली संघ का संसद निरंतर सक्रिय रह करके। Well, thank you so much for joining us there, Vinod Bansal, VHP National Spokesperson. Thank you for joining us on this big comment which has been made by Mohan Bhagwat, where he's clearly said, viewers, and I'll repeat that once more what he has said. He has said that the Hindu society should unite by eliminating differences and disputes of all languages, caste, province for its security. All right, we're being joined by Pramod Krishnan, former Congress leader, joining us live. Thank you for joining us, Mr. Krishnan, here on Republic TV. And my first question to you is, what is your first reaction to what Mohan Bhagwat, the RSS chief, has said? He says Hindus must unite, leave aside all the differences, and must unite together for a stronger nation. देखिए शुभांगी, मोहन भागवत जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि सबको यूनाइटेड रहना चाहिए। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया। संघे शक्ति कलयुगे, जो डेमोक्रेसी है, जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, उसमें जब हम सब एक साथ रहेंगे और तभी मजबूत रहेंगे, तभी ठीक रहेंगे। और ये तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वहाँ भी संघम शरणम गच्छामि का उल्लेख किया गया है। तो सवाल इस बात का है कि जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, तो भारत अकेली ऐसी भूमि है जहाँ से सनातन का ओरिजिन हुआ है। सनातन की उत्पत्ति भारत है, इसलिए भारत को और सनातन को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। भारत स्वतः ही सनातन है और सनातन स्वतः भारत है। यदि भारत नहीं है तो सनातन नहीं है, और सनातन नहीं है तो भारत नहीं है। इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसमें हम सनातन के मानने वाले जितने भी हैं, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। हम तो दूसरे धर्मों को अपने धर्म बराबर ही आदर करते हैं। हम हर व्यक्ति के कल्याण की कामना करते हैं। हमारी प्रार्थना का अंश है, हमारी प्रार्थना का पार्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। हम कभी ये नहीं कहते सिर्फ हिंदुओं का कल्याण करो, हम कभी ये नहीं कहते हमारा कल्याण करो। हमारी प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हे परमात्मा सब पर कल्याण करो। तो जो धर्म और जो समाज, जो कम्युनिटी सबके कल्याण की कामना करती है, वो स्वतः ही राष्ट्र के कल्याण की कामना है। Right.
Also, Acharya Pramod Krishnam, I want to ask you one more question because we remember what Yogi Adityanath has said that batenge to katenge, ek rahenge to nek rahenge. He had said that, and he had also accused the opposition of playing divisive politics. What is your reaction on this? Because first he said that PM Modi has backed it, and now RSSG Mohan Bhagwat on the same lines has said that Hindu society must unite and stand together. देखिए, दो बातें हैं शुभांगी। एक तो इसे हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो कोई, हिंदुस्तान ये तो कोई शब्द नहीं हो सकता ना, हिंदुस्तान ही शब्द होगा। इसका रिसर्च कीजिएगा। तो हिंदुस्तान तो वैसे ही हिंदुस्तान है। दूसरा सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो विषय है, तो भारत 1000 साल तक गुलाम रहा है, और भारत जब गुलाम हुआ तो भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बड़ा बहादुर था, महमूद गजनवी बड़ा बहादुर था, अंग्रेज़ बड़े बहादुर थे। भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि ये विदेशी हमला करने वाले लोग, विदेशी आक्रांता बहुत बहादुर थे। भारत इसलिए गुलाम हुआ कि हम लोग बटे हुए थे। हम लोग बटे हुए थे। जब बटे तो कटे, लेकिन हमें ये संकल्प लेना है, हमें ये शपथ लेनी है कि हम ना बटने देंगे और ना कटने देंगे, ना बटने देंगे ना कटने देंगे। और 1947 में एक बंटवारा हो चुका, और 1947 का बंटवारा जो हुआ, 1947 में जो बंटवारे का जख्म है, ये जो विभाजन हुआ, विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर लगा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बटे तभी कटे, विभाजन तभी हुआ। तो अब हमें यह संकल्प लेना है कि हम ना बटने देंगे और ना कटने देंगे। All right, thank you for joining us, Acharya Pramod Krishnam, former Congress leader, joining us here. We will be tracking this story very closely. We have to move ahead now to some of the other stories that we're tracking in the next segment, Bharat in 2 minutes. Let's get started.